اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور یہاں اس پنڈال میں موجود بیٹھے ہوئے ہر شخص کو السلام علیکم۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گورنر ہاؤس کس کا ہے؟ نہیں، یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے۔ یہی تو سمجھانے کے لیے روزانہ بلا رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے سب کہتے تھے یہ میرا ہے۔ جب سے اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا اس دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا، کیونکہ یہ جو مملکت خداداد، یہ ہمارا وطن عزیز ہے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ 77 سال پہلے جب اس ملک کو بنانے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ملک میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ یہاں پر رہنے والوں کو مکمل آزادی ہوگی، ان کی حکمرانی ہوگی اور اس ملک پاکستان کے جتنے وسائل ہیں یہ اس میں رہنے والے لوگوں کے ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ وسائل چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے اور وہ امیر سے اور امیر تک بڑھتے چلے گئے، اور جو میرے اس ملک کا، اس شہر کا اور اس صوبے کا مظلوم، چاہے وہ سندھی بھائی ہو، چاہے وہ بلوچی بھائی ہو، چاہے وہ پختون بھائی ہو، چاہے وہ اس شہر کا اردو اسپیکنگ مہاجر ہو، یہ سارے مظلوم بہن اور بھائی جابر حکمرانوں اور ظالم وڈیروں اور جاگیرداروں کی بھینٹ چڑھ گئے، اور جو حق آپ کا تھا، یہ جو بڑے بڑے ایوان بنائے گئے تھے، اس میں آپ لوگوں کے لیے کرسیاں لگنی تھیں، لیکن اس سے پہلے، میرے آنے سے پہلے، یہاں صرف وزیر اور سفیر بلائے جاتے تھے۔ اس گورنر ہاؤس کے اندر کوئی بغیر اجازت چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن الحمدللہ 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا۔ جس دن میرا نوٹیفیکیشن ہوا اس دن 12 ربیع الاول کا دن تھا، تو میں سوچتا تھا کہ میرے اللہ نے اتنے مبارک دن، اتنے پیارے دن اگر مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے تو کوئی نہ کوئی کام تو وہ مجھ سے لے گا۔ اور آج جب میں اپنے ان پیارے پیارے بزرگوں، بہن بھائیوں اور بچوں کو یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہو رہا ہے کہ شاید مجھے اللہ نے اسی دن کے لیے 12 ربیع الاول کو اس صوبے کا گورنر بنایا تھا۔ گورنر تو اللہ نے بنا دیا، لیکن اس صوبے کے اور اس شہر کے جو گھمگیر مسائل ہیں اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ میرے اس شہر میں، اس صوبے میں اور اس ملک میں جو میرا یہ غریب اور مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والا کوئی شخص
कोई 5,000 की बंगला या कोठी नहीं मांग रहा है। कोई यहां बैठने वाला शख्स बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें नहीं मांग रहा है। मुझे पता है कि यहां बैठने वाला शख्स सिर्फ ये चाहता है कि उसकी अपनी छत हो, चाहे 120 गज का घर हो, चाहे 60 गज का घर हो, चाहे 2 कमरों का फ्लैट हो, लेकिन उसका अपना हो। यहां बैठने वाला शख्स ये चाहता है कि अगर उसके 4 बच्चे हैं तो मेरे पास अपनी जाती अच्छी मोटरसाइकिल या छोटी ऑल्टो या कोई पुरानी गाड़ी अपनी हो। यही चाहता है वो, ताकि वो अपने बच्चों को उस गाड़ी में बिठाकर सैर करा सके, अपने बच्चों को ले जाकर स्कूल छोड़कर आ सके। यहां बैठने वाला शख्स सिर्फ यही तो चाहता है कि उसकी अच्छी कहीं नौकरी लग जाए या उसका अपना रोजगार हो, ताकि वो अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके। यहां पर बैठने वाला शख्स ये चाहता है कि उसे सस्ती बिजली और उसके घर में पानी आए, उसके घर में गैस आए और वो आराम से अपने बच्चों के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सके। और अगर उसके घर में बच्चों में कोई बीमारी हो तो उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सके, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके, ताकि वो भी इस माशरे में आला मकाम हासिल कर सकें। बताएं, इसके अलावा कोई ख्वाहिश है आपकी? लेकिन जो हमारे माजूर बहन भाई हैं, उनकी भी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। कोई माजूर चाहता है कि उसे माजूर होने वाली इस्तेमाल करने में बाइक मिल जाए। कोई मेरा यहां शख्स बैठा होगा, वो चाहता होगा कि उसे उम्रे पे भिजवा दिया जाए। जो मेरी बुजुर्ग माएं बहनें बैठी हैं, भाई बुजुर्ग बड़े बैठे, उन्हें हज और उम्रे की ख्वाहिश होगी। यही ख्वाहिशात हैं। लेकिन मैं उन वडेरे और जागीरदारों का क्या करूं जिनके पास पहले से 2 लाख एकड़ जमीन है और वो चाहते हैं कि और 5 लाख एकड़ जमीन आ जाए। वो जागीरदार, वो वडेरे, वो बड़े बड़े ऐसे लोग जो कि मुल्क पर काबिज हैं, माफियाज के एजेंट हैं, अगर उनके घर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं तो वो कहता है कि मेरे पास 5 और बड़ी गाड़ियां आ जाए। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि इन सब चीजों का हिसाब उसे एक दिन अल्लाह ताला के सामने देना है। और हर मुसलमान, मुझे ये बताएं कि यहां बैठा कोई शख्स इस बात की गारंटी दे सकता है कि कल वो जिंदा है? क्या कोई एक गारंटी दे सकता है कि उसे अगले घंटे का पता है कि वो जिंदा है? लेकिन फिर भी देखें कि इंसान कितना बेवकूफ है कि पल भर की जिंदगी का पता नहीं है और सामान 100 साल का तैयार कर रहा है। ऐसा ही है। लेकिन मैं समझता हूं कि खुश नसीब होगा वो शख्स जिसे आखिरत में उसका नामा-ए अमाल सीधे हाथ में मिले हैं और वो अपना, जिसका वो उम्मती है, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्योंकि अगर हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत, उनकी जिंदगी, उनकी सीरत पे नजर डालें तो हम अलल ऐलान कह सकते हैं ना कि सच्चा है हमारा नबी। ऐसा ही है, 1000% ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये सुनने को मिले कि सच्चे नबी के जो उम्मती हैं वो झूठे हैं, सच्चे नबी के जो उम्मती हैं
वो हकूकुल इबाद अदा नहीं करते। सच्चे नबी के उम्मती आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक और प्यार नहीं करते। इस सच्चे नबी के उम्मती एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं। इस सच्चे नबी के उम्मती मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिमों के सामने अपने आप को ऐसे पेश करते हैं कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इनका जो नबी है, नबी इनका जो प्यारा नबी जिसे अल्लाह ताला ने हमारी लिए आखिरी नबी के तौर पर भेजा, और आज 1400 साल गुजरने के बावजूद मुझे ये बताएं कि यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को 100 साल पहले या 300 साल पहले अपने किसी दादा परदादा का नाम याद है? 400 साल पहले किसी को अपने दादा परदादा का नाम याद है? 1000 साल पहले अपने किसी दादा परदादा का नाम याद है? लेकिन 1400 साल गुजरने के बावजूद हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस, उनका नमाज पढ़ने का तरीका, उनका जिंदगी गुजारने का तरीका, उनके कारोबार का तरीका, उनकी हर चीज का तरीका आज हमें पता है। कोई गूगल कर ले तो उसको पता है। और आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अगर जिंदगी गुजारने के रहनुमा असूलों के बारे में बात की जाएगी तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो हम उस प्यारे नबी के उम्मती हैं जिसने अपने गैर मुस्लिमों से भी हुस्ने इखलाक का हुक्म दिया है। अगर कोई हमारा भाई हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, तो हमारे इस्लाम ने और हमारे इस प्यारे नबी ने सबके साथ उसने इखलाक का दर्ज दिया है। कहा है कि सबको मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपनी सफ़ों में रखो। और यही वजह है कि आज हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और एक इस्लामी मुल्क, क्योंकि हमारे पाकिस्तान लफ्ज से पहले लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम इस मुल्क में रहते हैं, मसाइल जरूर हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा जब यहां बैठा हर शख्स अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। वो दिन इंशाअल्लाह ताला जरूर आएगा। 2-3 चीजें हमने इस गवर्नर हाउस में की हैं। आज इस गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे, जिनका वालिद किसी का ड्राइवर है, किसी का बाप रक्षा चलाता है, कोई किराए के मकान में रहता है, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन 50,000 बच्चों को हम यहाँ मुफ्त आईटी के एडवांस कोर्सेज करा रहे हैं। वो कोर्स जो मार्केट में 9 लाख रुपए का है, गवर्नर हाउस में बिल्कुल मुफ्त है। और आज 11 महीनों में बहुत सारे हजारों बच्चे बच्चियां, कोई $1500 कमा रहा है, कोई $2000 कमा रहा है, यानी कि कोई 5 लाख रुपए महीना, कोई 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है। यहां इस गवर्नर हाउस से मुफ्त तालीम दी गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह गवर्नर हाउस में मुफ्त राशन की तकसीम पिछले 2.5 साल से जारी और सारी है। इसी तरह हमने उम्मीद की एक घंटी गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लगा रही है। यहां पर मौजूद किसी भी शख्स के पास कोई एप्लीकेशन है, उसकी कोई परेशानी है, तो वो गवर्नर हाउस के उस दरवाजे पर 24 घंटे हमारा स्टाफ मौजूद रहता है। आप उसे आकर अपनी परेशानी बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं यहां ये कह दूं, जरूरी नहीं है कि सबके काम हो जाए, लेकिन जिनके काम हो रहे हैं उनमें शायद आप खुशनसीब हो कि आपका काम हो जाए, क्योंकि मुझ समेत मेरा तमाम गवर्नर हाउस का स्टाफ आपकी खिदमत के लिए, आपके काम करने के लिए रात दिन कोशा है। क्योंकि मेरा ये मानना है, ईमान है कि अगर जो आप जैसे मजलूम
लोगों का साथ देगा, उसका साथ अल्लाह ताला देगा। और उसी जज्बे के साथ मैं ये काम कर रहा हूं। और आज आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा रमजानुल मुबारक है, तीसरा रमजानुल मुबारक है जहां दरवाजे खुले हुए हैं। आप लोग यहां हमारे दरमियान बैठकर इफ्तार डिनर कर रहे हैं और ये सब आपके लिए है। और आज आप देखें कि अल्लाह ताला ने मुझे भी ये तीसरा रमजान दिया, जबकि जब मैं आया था तो मेरे आने के साथ ही जब हमने ये आईटी का काम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ शुरू हो गई थी कि आप इन लोगों को आईटी क्यों सिखा रहे हैं। हमने तो इन लोगों को अपने सियासी जलसों में कुर्सियां लगाने, पार्टी के झंडे लगाने और टेंट लगाने के लिए रखा हुआ है। आप इन्हें आईटी सिखा देंगे तो ये जब 10-12 लाख कमाएंगे तो ये तो अपनी गाड़ी में जा रहा होगा, तो जब ये अपनी गाड़ी चलाएगा तो ये हमारा झंडा उठाकर हमारे लिए कुर्सियां क्यों लगाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज आप भी 5 रोज से यहां आ रहे हैं, आप बताएं इस पूरे पंडाल में कहीं मेरी सियासी जमात जिसका ताल्लुक मेरा MQM पाकिस्तान से है, क्या कोई झंडा नजर आया आपको? एक झंडा कहीं लगा है? क्या यहां आने से पहले किसी ने पूछा कि तुम सिंधी हो, पठान हो, महाजिर हो, बलोची हो? किसी ने पूछा? यहां हर जबान बोलने वाला बैठा है। ये इस गवर्नर हाउस को ये एजाज मिला है कि यहां इंसानियत से प्यार किया जाता है, लोगों से प्यार किया जाता है, उनकी कौमियत या उनका मजहब नहीं पूछा जाता। यहां हिंदू भी बैठा है, यहां ईसाई भी बैठा होगा। ये इस्लाम का दर्स है, ये मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और बसीरत है। और जब मेरा ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही फरमान था कि इस मुल्क में तमाम अकलियतों को भी आजादी से रहने का हक होगा। और ये मुसलमान उन तमाम भाइयों को अपने दरमियान वही प्यार और वही सलूक, वही हुस्न सलूक करेंगे जो वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करते हैं। तो मैं कौन होता हूं जब मेरा मजहब इजाजत नहीं देता तो मैं ये तफरीक करूं कि ये महाजिर है और ये सिंधी है और ये पठान है। मैं कहता हूं कि सब मुसलमान और फिर सब हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। इसी जज्बे के साथ ये सफर जारी हो सारी रहेगा। आज गवर्नर हाउस को पूरी चारों दीवारें जो गेट 4 से गेट 2 तक जाती हैं उसे रोशनियों से, कुमकुमों से सजाया जा रहा है। दरवाजों पे शैंगलियर्स लगाए जा रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे कि ये इतनी सजावट क्यों हो रही है, किसी की कोई शादी का एहतमाम भी है रमजान में? मैंने कहा जब दुनिया में गैर मुस्लिम्स, जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो पूरा पूरा मुल्क सजाते हैं। और आज सबसे प्यारा महीना, 12 महीनों में सबसे प्यारा महीना मेरे ये रमजानुल मुबारक का महीना है। उसकी आमद, उसकी तैयारी और उसकी खुशी में पूरा गवर्नर हाउस रोशनियों से चमचमाएगा। तो इसलिए गवर्नर हाउस पूरा सजाया जा रहा है। 1-2 रोज में पूरा मुकम्मल हो जाएगा। फवारा चौक भी हमने सजाया है और भी जो यहाँ हमारे इस अतराफ के चौक हैं वो भी हम इंशाअल्लाह ताला सजाएंगे, उनको कुमकुमे लगाएंगे, क्योंकि ये प्यार है रमजान से, ये मोहब्बत है इस महीने से। और फिर जिसको अल्लाह ने 12 रबी अव्वल को बिठाया हो वो फिर नातों की महफिल क्यों ना कराए। और आज जितनी प्यारी नातें मेरे भाई खावर नक्शबंदी ने हमें सुनाई है तो मैं कहता हूं वो समा बन गया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और हमारे दरमियान मेरे बहुत ही हर दिल लजीज दोस्त रेहान चावला भाई मौजूद हैं। टावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है इनका और आज इन्होंने हमारे साथ शामिल हुए हैं।
اس افطار ڈنر کے پروگرام میں، اس میں بھی انہوں نے تعاون کیا ہے، اور انہوں نے عمرے کے ٹکٹ دینے کے لیے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ان کے جو فادر ان لا ہیں وہ امریکہ جا رہتے وہیں ہیں، تو آج میں نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ جو روزانہ اسمارٹ سٹی کا ہم جو قرآن اندازی میں ایک پلاٹ دیتے ہیں، اس کی قرآن اندازی بھی آپ کے فادر ان لا سے ہم کرائیں گے، شیخ صاحب سے، وہ ابھی اس پلاٹ کی قرآن اندازی بھی کریں گے۔ میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ حوصلہ نہیں چھوڑنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے۔ نا امیدی آتی ضرور ہے، قوموں میں آتی ہے، لیکن یہ کفر ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے، ہارنا نہیں ہے، ہمت کرنی ہے، ہمت سے مسائل سے لڑنا ہے، اور جب بالکل سمجھیں کہ امید جواب دے رہی ہے، نا امیدی کے بادل آ رہے ہیں، تو میں اس گورنر ہاؤس میں آنے کی آپ کو دعوت دوں گا۔ آپ اس گورنر ہاؤس میں چلے آئیں، یہاں بیٹھا مکین آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس شہر میں، اس صوبے میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دوں گا۔ میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹسوری فیملی سمجھیں۔ آج سے آپ میری فیملی ہیں، اور آپ لوگوں کو بتائیں، کسی کو کوئی پولیس والا، کسی موٹر سائیکل سوار کو کوئی پولیس والا روکے اور آپ سے پوچھے کون ہو، تو کہو میں ٹسوری فیملی کا ممبر ہوں، میں گورنر کی فیملی کا ممبر ہوں۔ پھر میں دیکھتا ہوں اس کے کیسے ہمت ہوتی ہے، اور زیادہ کرے ہوتے ہیں نا ثبوت دکھاؤ، تو ثبوت کے لیے اس کو پیچھے بٹھا کے گورنر ہاؤس پہ لے آؤ۔ یہاں وہ کہے گا جب تمہاری موٹر سائیکل پر اس کو باہر اتار کے تمہیں اندر آنے دیا جائے گا، اور اس سے سوال جواب ہوگا۔ یہاں پر بیٹھا ہر شخص خوف سے باہر آ جائے، کیونکہ یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سے کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی کی ذات سے نہیں ڈرنا۔ کوئی مالک مکان میرے کسی کرایہ دار کو تنگ کرے، تڑی لگائے، گھر خالی کرنے کا کہے، تو بھی گورنر ہاؤس چلے آنا۔ ویسے تو قانون کی پاسداری سب کو کرنی ہے، بجلی پانی اور گیس کے بل دینے ہیں، لیکن ناجائز کوئی کاٹنے آئے تو اس کو بھی گورنر ہاؤس لے آنا۔ چلیں جی، تیاری کریں لکی ڈرا کی۔